ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پرچھائی، ایپیسوڈ نمبر 15۔ سومری اب زمین پر گری تڑپ رہی تھی اور پھر یکدم بے جان ہو گئی۔ سائیں کوڑیل کو ایک لمحے کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ سومری جیسی پر اسرار قوتوں کی مالک روح یوں آسانی سے ڈھیر ہو سکتی ہے۔ اس نے بے اختیار خوش ہو کر اپنے ساتھ بیٹھے بوڑھے جگن سامری کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ واہ مہاراج واہ، آپ نے آج کمال کر دیا، واقعی آپ ست ودیا ہو۔ واہ مہاراج واہ، آپ نے آج کمال کر دیا، واقعی آپ ست ودیا ہو، پورا علم جانتے ہو، بڑا پالا مار لیا آج تو آپ نے۔ یہ کہہ کر سائیں کوڑیل ایک دم بے ہوش پڑی سومری کی طرف لپکنے لگا۔ جگن سامری نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر سختی سے کہا، ارے بے وقوف، ذرا دھیرج سے کام لے، ہم دونوں کے گرد حفاظتی حصار قائم ہے، پہلے کام مکمل ہو جانے دے۔ سومری دوبارہ بھی ہم پر حملہ کر سکتی ہے، پہلے اچھی طرح اطمینان کر لینے دو۔ جگن سامری کی بات سن کر سائیں کوڑیل اپنا سر دھننے لگا۔ پھر جگن سامری نے زہر لب ایک منتر پڑھ کر اپنی تابے چڑیل پر پھونکا اور اس کے بعد اپنی بگچی سے ایک ران کی طرح کی انسانی ہڈی نکال کر زمین پر پڑی تڑپتی ہوئی سومری کی طرف اس کا رخ کر کے ایک اور منتر پڑھ کر پھونک ماری تو یکدم سومری کا وجود رفتہ رفتہ گھٹنے لگا، حتیٰ کہ وہ بالکل ایک چھوٹی سی گڑیا کی شکل میں بدل گئی۔ تو یکا یک وہ فضا میں تیرنے کے انداز میں اٹھنے لگی۔ اس کا رخ جگن سامری کی طرف تھا، جو اب اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شیشے کا مرتبان پکڑے ہوئے تھا۔ مرتبان کا ڈھکن کھلا تھا۔ سومری ہوا میں تیرتی ہوئی سیدھی اس مرتبان کے اندر سما گئی۔ جگن سامری نے فوراً مرتبان کا منہ بند کر لیا۔ سکھاں واپس جا چکی تھی۔ ذرا دیر بعد کوڑیل اور جگن سامری شاداں اور فرحاں اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شیشے کا چھوٹے سا مرتبان سائیں کوڑیل نے تھام رکھا تھا، جس کے اندر سومری قید تھی۔ وڈیرے سالار خان کا چہرہ اس وقت غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا، مگر اس کے غصے کی اصل وجہ وہ پریشانی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے سامنے مونڈے پر براجمان انسپکٹر عالی جا اس سے گوش گزار کر چکا تھا۔ اس وقت دونوں اوطاق میں آمنے سامنے سرکنڈوں والے مونڈوں پر بیٹھے تھے۔ کہیں دور کھیتوں کے لامتناہی افق کے عقب میں جاڑے کا گلابی سورج غروب ہو رہا تھا اور سردی کا احساس بھی بڑھنے لگا تھا۔ درمیان میں انگیٹھی کے اندر سلگتے ہوئے کوئلے چٹک رہے تھے۔ وڈیرا بدن پر اجرک لپیٹے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوکا گڑگڑا رہا تھا۔ درمیان میں تپائی پر ایک بوتل اور کانچ کے 2 آدھ بھرے گلاس دھرے تھے۔ بھنی ہوئی مونگ پھلیوں کے دانے اور بٹیروں کے 3-4 بھنے ہوئے سالم پٹھور ایک پلیٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس مختصر سی محفل ناؤ نوش سے انسپکٹر عالی جا حریصانہ انداز میں ہیزا اٹھا رہا ہوتا، مگر اس وقت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ خاصا سولیدہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وڈیرے سالار خان کو حاجی ارسلان خان اور مقتول ہاری میر محمد کے بڑے بیٹے میر نواز کے بارے میں اہم بات بتا چکا تھا کہ بقول حاجی ارسلان خان کے انہوں نے ہاری میر محمد کے قتل کے اہم اور چشمدید گواہ کا پتہ چلا لیا ہے اور سروست اس کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے قاتل کو میر محمد کا قتل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انسپکٹر ذرا سی گمبھیر اور پر اسرار بھری خاموشی کے بعد وڈیرا سالار خان نیم گنودہ سی آواز میں بولا، جی سائیں۔ انسپکٹر عالی جا فوراً اس کی طرف دیکھ کر بولا، بابا مجھے لگتا ہے
ज़िम्मेदार हाजी अरसला खान तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है। ये उसका अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर है। इस तरह वो हम पर अपनी छुपी हुई ताकत का नफ्सियाती दबाव डालकर तुम्हें तफ्तीश की तरफ मतवज्जा करना चाहता है। वडेरा साईं, ख्याल तो मेरा भी यही था, इंस्पेक्टर ने फ़ौरन कहा, फिर मज़ीद इजाफ़ा किया, मगर उस कमबख्त के पुरएतमाद लहजे ने मुझे वाकई अंदर से डरा दिया है साईं। उसकी बात सुनकर वडेरे सलार खान ने हंकारी भरी और अपनी वस्मा लगी घनी भुवों तले आंखों को सुकेड़ कर नज़रें किसी गैर बरी नुक्ते पर चंद सानिये मरकूज रहने दी। फिर खरखराती आवाज़ में बोला, बाबा तू ऐसा कर इंस्पेक्टर, उस हाजी को अंधेरे में तीर चलाने दे। पहले मिट्ठू के बाप बिचल की तरफ से मीर नवाज के खिलाफ एफआईआर काट कर उसे तो अंदर कर, फिर देखते हैं कि अरसला खान कौन सा तीर चलाता है। ठीक है साईं, फिर मैं कल सुबह ही ये काम कर देता हूँ। मैं कल मिट्ठू के बाप बिचल को अपने मुंशी के साथ थाने तेरे पास भेजूँगा। मीर नवाज के खिलाफ एनसी की बजाय पक्का पर्चा काटना होगा तेरे को। बराबर साईं बराबर, इंस्पेक्टर आली जा ने सर हिलाते हुए कहा। सुखा अगले दिन सोकर जागी तो उसका सर भारी हो रहा था। उसे अपने जहन में धुंध सी छाई हुई महसूस हो रही थी। उसने अपने सर को 2-3 बार झटके दिए तो दूसरी चारपाइयों से रलियां बिस्तर समेटती हुई मासी ने हैरत से सुखा की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों दिए, खैर तो है ना, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ मासी, बस यूं ही सर ज़रा भारी भारी सा हो रहा था, सुखा ने बताया। और फिर वो चारपाई से उठ खड़ी हुई। दोनों भाइयों की चारपाइयाँ खाली थी, वो शायद खेतों पर जा चुके थे। सुखा गोमगो की हालत में चलती हुई कच्चे मगर कुशादा सहन के एक कोने में बनी सरकंडों की आड़ के अकब में चली गई। नाश्ती बिस्तर वगैरह समेट कर अंदर कोठरी में जा चुकी थी। सुखा हाथ मुंह वगैरह धोकर रसोई में जा घुसी। अब वो खुद को कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। जहन से धुंध की दबीज चादर छटते ही उसे अपने महबूब मुराद बख्श का ख्याल सताने लगा। उसे अपने बारे में सिर्फ इस कदर ही याद था कि वह मुराद बख्श एक दूसरे को भागते हुए पकड़ रहे थे और फिर अचानक सांप ने काट लिया था। उसके बाद की सूरत हाल मासी ने बता दी कि उसे मुराद बख्श सबसे पहले साईं कोड़ियल के हुजरे में लेकर गया था, जहां उसने दम करने के बाद वहां से रुखसत कर दिया और फिर मुराद बख्श चाचा रसूल बख्श की बैलगाड़ी पर डालकर घर छोड़ गया था। सुखा घर के रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ हो गई। जाड़ों की सुनहरी धूप अब धीरे धीरे सफ़ेदी माइल होती जा रही थी और वो कच्ची दीवारों पर फिसल कर खुले सहन में उतर आई थी। सुखा का दिमाग और दिल मुराद बख्श की तरफ अटका हुआ था, इसीलिए वो जल्द अज जल्द अपना काम निपटा कर नहर पर पहुंचने के लिए बेताब थी, जहां मुराद बख्श बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। मासी मासूम सुखा की इस बेकरारी और काम जल्दी जल्दी निपटाने की कैफियत से वाकिफ़ थी और दिल ही दिल में मुस्कुरा भी रही थी। देख दिए, मेरी एक बात सुन। जब सुखा सारे काम निपटा कर खाली गागरे सर पर रखकर खुशी खुशी नहर से पानी भरने के लिए घर से निकलने लगी तो जहां दीदा मासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सुखा को मासी का ये बोलने का अंदाज चौंका गया। जी मासी, बोल। उसकी स्याह आंखों में मासूमाना दिलकशी थी। धिये, तेरे को मुराद बख्श अच्छा लगता है ना? मासी ने प्यार भरे लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा तो सुखा के अनाबी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने धीरे से अपना सर असबात में हिलाते हुए झुका दिया। देख, इस तरह तेरा मिलना ठीक नहीं है। उसको बोल अपने प्यो मोहम्मद बख्श को तेरे रिश्ते के वास्ते तेरे भाइयों के पास भेजे। ये अच्छा तरीका है तुम दोनों के मिलने का। सुखा को मासी अपनी माँ की तरह ही लगती थी। उसने उसकी बात पल्ले से बांध ली और फिर नहर पर पहुंचकर उसने अपने इंतज़ार में बेकरार बैठे मुराद बख्श से ये बात कह डाली। तेरी मासी बिल्कुल ठीक कहती है सुखा। मुराद बख्श ने उसके हसीन और जमील चेहरे की तरफ देखकर खिलाफ़े मामूल बड़ी मतानत के साथ कहा।
फिर तो आज भेज देना चाचा को। बे इख्तियार सुखा के मुंह से निकला और फिर मुराद बख्श की मोहब्बत पाश नज़रों में शरारत की झलक देखकर उसका चेहरा शर्म से झुक गया। तेरे को बड़ी जल्दी है, उसने शरारत से कहा। तो तेरे को कौन सा सब्र है, तू भी तो। सुखा से मारे शर्म के बोला ना गया और फिर ज़रा देर बाद दोनों हंसी खुशी एक दूसरे से रुखसत हो गए। बट साईं पर कातलाना हमले वाला मामला दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था। गोठ के लोगों को बट साईं से बड़ी अकीदत हो गई थी और वो उसके लिए कट मरने को तैयार रहते थे। कोई और मामला यानी ज़मीन पानी का होता तो और बात थी, मगर ये मामला था दिली अकीदत और रूहानी जज्बात का। गुलशेर के बारे में लोगों का इस बात पर पुख्ता यकीन हो चला था कि वो वडेरे सलार खान का ही आदमी था और उनके इस यकीन की वजह यही थी कि वडेरे सलार खान ने गुलशेर को अभी तक सज़ा नहीं दी थी। वो सज़ा से मुतल्लक टाल रहा था। यही सबब था कि लोगों के दिलों में वडेरे के लिए भी नफ़रत जड़ पकड़ने लगी। उन्होंने गुलशेर को बट साईं पर कातलाना हमले की सज़ा दिलवाने का अज़म कर रखा था। यही वजह थी कि उन्होंने बाकायदा एक कमेटी कायम कर ली जिसका सरबराह मुतफ़क्का राय से मोहम्मद बख्श को बना दिया गया। ये मुराद बख्श का बाप मोहम्मद बख्श जो मुतलका थाने में इंस्पेक्टर आली जा का उर्दली था और ज़िम्मेदार हाजी अरसला खान का मुकर्रब ख़ास भी। उस कमेटी में 5 अफराद थे जो आपस में खुफिया नशस्तें जमाते थे। ऐसी एक नशस्त में कमेटी के सरबराह मोहम्मद बख्श ने अपने 5 अरकान कमेटी पर यह बात वाज़ेह कर दी कि हारी मीर मोहम्मद का कत्ल वडेरे सलार खान ने उस लिए करवाया था कि मीर मोहम्मद गरीब हारियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता था। लिहाजा सलार खान को उसकी ये जसारत नागवार गुजरी। यूं रास्ते का पत्थर समझकर बदकिस्मत हारी मीर मोहम्मद का खून कर दिया गया। उसके साथ साथ गुलशेर वाले मामले में भी वडेरा दानिस्ता तसाहल से काम ले रहा था। साईं मोहम्मद बख्श की बात की 100% मैं तायद करता हूँ। हमें मीर मोहम्मद वाला मामला भी बड़े बोतार के इल्म में लाना चाहिए ताकि उसे पता चले कि उसकी देदा दिलेरी को लगाम देने वाले कत्ल कर देने से मर नहीं जाया करते। उनकी मौत के बाद भी उनका काम जारी रहता है ताकि उसे फिर ये जुर्रत ना हो। ये दिल मुराद था। उम्र 40 साल थी, जिस्म दुबला पतला और रंगत गदमी थी। ये लोग इस वक्त उसके घर के पिछवाड़े बनी कोठरी नुमा एक बैठक में मौजूद थे। बामुरादे की बात सही थी। हमें उदा मीर मोहम्मद के कत्ल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बिलखसूस बट साईं पर कातलाना हमले वाले ख़तरनाक और तशवीशनाक मामले के बाद तो ये और भी ज़रूरी हो गया है। एक खासे मजबूत जिस्म वाले जफाकश हारी ने पुरजोश लहजे में कहा। इन्हीं 5 अरकान में हारी मीर मोहम्मद का बड़ा बेटा मीर नवाज़ भी मौजूद था। उसने भी अपनी राय देना ज़रूरी समझा। वो बोला, यूँ तो मैंने पुलिस में अपने बाबा के कत्ल की FIR कटवा दी है और इंस्पेक्टर आली जा को ये भी बता दिया है कि मेरे बाबा साईं को कत्ल करने वाले का चश्मदीद गवाह भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन इन बातों के बावजूद हमें इस तरह मुत्तहिद होकर मेरे बाबा साईं के कत्ल से मुतल्लक और बट साईं पर कातलाना हमला करने वाले गुलशेर को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए वड्डे बोतार की औताक में हाज़रियाँ देकर फरियादें करते रहना चाहिए ताकि वड्डे बोतार साईं को अच्छी तरह से इस बात का एहसास हो जाए कि उस पर भी गोठ वालों की कड़ी निगाह है। इस तरह उसकी रेशा दवानियों में किसी हद तक कमी आ जाएगी। मीर नवाब ने सराहत के साथ अपना नुक्ता नज़र समझाते हुए कहा। माहौल पर यकदम पुरसोर सकूत छा गया। बिल आखिर सब ने मीर मोहम्मद की बात पर साद किया और उठकर सीधा वडेरे सलार खान की औताक में पहुँचे। वहाँ सिर्फ उसका मुंशी जुमा खान चंद हवारियों के साथ मौजूद था। उसने मकाराना मुस्कुराहट के साथ उन्हें बताया कि वड्डा बोतार पास के किसी गोठ में राजबड़ी फैसले में शिरकत के लिए गया हुआ है। नाचार ये लोग वडेरे से फिर किसी और दिन मुलाकात करने का इरादा करके लौट आए।
लकोदिक सहरा में ठठरती हुई रात अपने जोबन पर थी। बट साईं अपनी झोंपड़ी में उदास बैठा था। वो भी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान से लौटा था। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि सोमरी की रूह उसके पास नहीं आई थी। इस गम में मोहम्मद मलूक ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। फिर वो अपने दिल को समझाता कि अब उसे सोमरी को बुलाना ही होगा, बल्कि ये हकीकत थी कि जब से उस बात की खबर हुई थी कि उसकी महबूब हस्ती सोमरी को उसके बाप वडेरे सलार खान ने उसके साथ कारी करके मार डाला था, उसकी यादों को भुलाने की खातिर ही इश्क मजाजी फरामोश करके इश्क हकीकी की तरफ मतवज्जा हुआ था। उसने अब अपने खुदा से लौ लगाई थी, क्योंकि सोमरी के मरने के बाद उसके जीने का अब फ़कत यही सहारा बाकी बचा था कि वो अब तमाम उम्र अल्लाह जल्ला शानहू की इबादत में गुजार दे और उस जालिम और ख़ुद गर्ज दुनिया से अपना ताल्लुक़ बिल्कुल तोड़ ले। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि उसे एक रात ख्वाब में सोमरी नज़र आ गई। उसकी यकदम आँख खुली तो उसने अपने सरहाने सोमरी को उदास और तजूर बैठे पाया। वो उसे देखकर खुशी से पागल हो गया, मगर फिर फ़ौरन ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सोमरी मर चुकी है। ये तो उसकी बेचैन रूह है। फिर तब से एक अजीब कहानी ने जन्म लिया। सोमरी की रूह से मुलाकातों का ये सिलसिला चल निकला, जिसने उसे काफ़ी सहारा दिया, मगर वो अक्सर तन्हाई में सोचा करता था कि यह कैसा मिलाप था। इस अजीब मिलाप ने तो उसके दिल की कसक को मज़ीद बढ़ा दिया था। यही सबब था कि वो अक्सर सोमरी को समझाता कि मुलाकातों का ये पुरइस्रार सिलसिला अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए, मगर सोमरी के बस में सरूसत ऐसा मुमकिन नहीं था। वो कहती थी, मेरे सरीजन, मैं एक बेचैन रूह हूँ। अब तक मेरे अंदर की बेकरारी ख़त्म नहीं हो जाती। मैं इसी तरह भटकती रहूँगी। और जब मोहम्मद मलूक ने उसकी बेकरारी के बारे में इस्तफसार किया तो सोमरी ने इंतकाम से भरपूर लहजे में जवाब देते हुए बताया कि जब तक मेरा बाप वडेरा सलार खान अपने जुर्म की सज़ा नहीं पा लेता, मुझे सुकून नसीब नहीं हो सकता। उसके बाद मोहम्मद मलूक ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। दर हकीकत अब वो ख़ुद भी सोमरी के साथ रातों में इन पुरइस्रार मुलाकातों का आदी हो चुका था। उसके दिल के नहा खानों में अब भी यह ख्वाहिश जन्म लेती रहती थी कि एक सच्ची मोहब्बत तो वैसे भी दो रूहों का मिलाप होती है। सोमरी नहीं रही तो क्या हुआ, उसकी रूह तो उसकी नज़रों के सामने है। वो जब चाहे उससे मुलाकात कर लेता है, उससे मीठी मीठी मोहब्बत भरी बातें कर लेता है, मगर अब जैसे यह सहारा भी उससे छिनता हुआ महसूस हो रहा था। आज काफ़ी देर तक अपनी झोंपड़ी में सोमरी की रूह के आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो ना आई तो खुद अपने बेकरार दिल के हाथों मजबूर होकर कशां कशां कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। वहाँ सोमरी की कब्र के सरहाने हस्बे मामूल चिराग जलाने और काफ़ी देर तक उसे दिल ही दिल में पुकारने के बाद मिलने की हसरत लिए नाकाम वापस झोंपड़ी में लौट आया। फिर सोमरी से आखिरी मुलाकात किए काफ़ी दिन बीत गए। वो गम से बिल्कुल नढाल हो गया। उस गरीब को क्या मालूम था कि सोमरी इन दोनों खबीस शैतानों साईं कोडियल और जगन सामरी के चुंगल में फंस चुकी थी। वो अपने मजहूर दिल को तसल्लियाँ देने लगा कि हो सकता है सोमरी आलम अरवा में वापस जा चुकी हो, और अच्छा हुआ, इस तरह उसे करार तो मिल ही जाएगा। मेरा क्या है, मेरे नसीब में तो वैसे ही दर बदर की खाक बसर होना लिखा है। रात दबे बाँव गुजरती चली जा रही थी और मोहम्मद मलूक बट साईं याद इलाही में मशगूल हो गया। उसके बाद वहीं बिछी चाटाई पर सो गया। अचानक उसे ख्वाब में सोमरी का रोता हुआ चेहरा नज़र आया। वो कह रही थी, मलूक, मुझे ये दो शैतानों ने कैद कर लिया है, मुझे छुड़ाओ वरना तुम्हारी सोमरी कहीं की नहीं रहेगी। सोमरी, मुझे उन दोनों शैतानों के नाम बताओ, मैं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद मलूक ने गुस्से में पूछा तो सोमरी ने सिसकते हुए उसे साईं कोडियल और जगन सामरी के नाम बता दिए। मोहम्मद मलूक ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी
ख्वाब का मंजर हनूज उसकी चश्मे तसव्वुर में रक्सा था। वो बेचैन हो गया। वो यकदम उठा और दीवाना वार अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर उजाला फैल चुका था। मोहम्मद मलूक तेज़ तेज़ कदमों से चला जा रहा था और उसका रुख आबादी की तरफ था। उस वक़्त 4 अफराद झोंपड़ी के बाहर मौजूद थे। ये वो लोग थे जो बट साईं पर कातलाना हमले के बाद उसकी हिफाजत के लिए मामूर किए गए थे और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ कमेटी की तरफ से सख्ती से इस बात की हदायत कर दी गई थी कि वो ये फ़र्द बट साईं के इल्म में लाए बगैर बजा लाएं, क्योंकि वो लोग बट साईं के जाहो जलाल से बखूबी वाक़िफ़ थे। लिहाजा अब ये चारों खुदाम की हैसियत से बज़ाहिर साइल बने हर समय साईं की झोंपड़ी के आस पास चौकस मंडलाते रहते थे। उन्होंने जो बट साईं को अचानक जाहो जलाल के आलम में झोंपड़ी से बाहर निकलकर आबादी की तरफ जाते देखा तो उन्हें हैरत का एक शदीद झटका लगा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि बट साईं ने यूं दीवाना वार आबादी का रुख किया हो। आबादी तो कजा इंसानों से बात भी नहीं करते थे। बट साईं का रास्ता रोक कर और उनसे कुछ पूछने की हिम्मत बहरहाल उन चारों मुहाफ़िज़ों में नहीं थी, मगर बट साईं की हिफाजत के तौर पर वो चारों हैरानों परेशान उसके पीछे पीछे हो लिए। बट साईं को उन्होंने गैर मामूली तौर पर लंबे लंबे ढग भरते हुए महसूस किया था, जैसे उन्हें जल्द अज जल्द कहीं पहुंचने की इजलत हो। वो चारों मुहाफ़िज़ उन लम्हात का तसव्वुर कर रहे थे जब बट साईं आबादी में दाखिल होंगे और फिर अकीदतमंदों का एक सेले रवां उनके गिर्द इकट्ठा हो जाएगा। मगर इससे ज़्यादा उन्हें अचंभा तो इस बात पर हो रहा था कि आखिर बट साईं को बैठे बैठे एकदम क्या सूझी कि यूं आबादी की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद उनका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। बट साईं पर जिस किसी की भी नज़र पड़ी वो आंखों में हैरत और अजीब सी खुशी लिए बट साईं आया कहते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। मगर बट साईं के चेहरे पर जलाल की सुर्खी को महसूस करके उससे कोई भी मुखातब होने की हिम्मत ना कर सका। वो सब लोग एक ही तहय्यर अमीज़ अज़तराब के साथ बट साईं की अक़ब में चले जा रहे थे। कई एक ने ज़रा हिम्मत करके बट साईं को झुककर सलाम भी किया, लेकिन बट साईं को किसी से भला क्या यारा था। बिल आखिर बट साईं ने मजबूरन किसी एक को शर्फ कलाम बख्शा और जलाली लहजे में पूछा, कोड़ियल किधर रहता है? वो एक आम हारी था जो अपनी किस्मत पर हैरान हुआ और फिर यकदम हाथ जोड़ते हुए अकीदत से लबरेज लहजे में बोला, साईं मुर्शिद, साईं आए मैं लेकर चलता हूँ। तुम मेरे कांधों पर बैठोगे मुर्शिद साईं? नहीं, चलो मेरे आगे, बट साईं ने सपाट लहजे में कहा और वो आगे बढ़ गया। ज़रा देर बाद बट साईं कोड़ियल के हुजरे के अंदर मौजूद था। अंदर साइलों की खासी तादाद मौजूद थी। सामने तख्त नुमा चबूतरे पर साईं कोड़ियल और जगन सामरी साइलों की बातें सुनने में मगन थे। ये दोनों डब्बा पीर थे। बट साईं के सामने साईं कोड़ियल की पीरी मुरीदी का सूरज गरूब हो जाया करता था। कोड़ियल बट साईं ने हुजरे के दरवाजे से ही साईं कोड़ियल को जलाली अंदाज में पुकारा। बट साईं की आवाज़ पर तो जैसे हुजरे में सबको सांप सूंघ गया और फिर हर कोई हैरत व गैर यकीनी के अंदाज में बट साईं को तकने लगा और फिर अगले ही लम्हे जैसे सब के जिस्मों में बिजली की सी हरकत आई और वो अकीदतमंदों के से अंदाज में अपने अपने हाथ जोड़े बट साईं आया का विरद करते हुए साईं कोड़ियल और जगन सामरी की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। शातिर सिर्फ साईं कोड़ियल बट साईं के सामने अपनी हैसियत समझता था, इसलिए वो भी बहस दिखावे की खातिर अपने तख्त नुमा चबूतरे से यकदम उठ खड़ा हुआ और बट साईं की तरफ बढ़ा। अलबत्ता जगन सामरी वैसे ही अपनी जगह बैठा अपनी चंदी चंदी और इसरार भरी नज़रों से बट साईं की तरफ घूरने लगा। सोमरी को तुम दोनों शैतानों ने क्यों कैद कर रहा है? फ़ौरन उसको छोड़ दो, वरना खुदाई कहर के लिए तैयार हो जाओ। बट साईं की गूंजदार आवाज़ हुजरे में गूंजी और फिर तो जैसे साईं कोड़ियल और जगन सामरी के सर पर बम फट पड़ा। पहली बार जगन सामरी अपनी नहूहत फैलाकर चबूतरे से उतरने पर मजबूर हो गया था
और अब उसकी आंखों में उलझन अमेज परेशानी मतरशे थी। उधर लोगों के मुंह हैरत से खुल गए। साईं कोड़ियल ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए अपने दोनों खिदमतगार खास अरबीलू और मग्गू को मखसूस इशारा किया तो उन दोनों ने बड़ी चालाकी के साथ वहां मौजूद देगर साइलों को हुजरे से बाहर निकाल दिया और ख़ुद भी बाहर निकल गए। बट साईं आप आओ तो साईं, आपने अपने दीदार से नवाज दिया, आओ आराम से बैठकर बातें करते हैं। साईं कोड़ियल हैरत अमीज़ परेशानी से झटके से कदरे संभलते हुए बड़ी खुशामदाना मक्कारी से बोला तो बट साईं कहरनाक नज़रों से बारी बारी पहले चबूतरे के पास खड़े जगन सामरी और फिर साईं कोड़ियल के चेहरे की तरफ घूरते हुए गर्जदार लहजे में बोला, तूने मेरी बात नहीं सुनी, अभी इसी वक्त सोमरी को रिहा कर दो फौरन।